how are you all doing? Welcome back to my channel or welcome if you're new here. My name is Dipanita. In today's video I will be sharing with you guys top 5 best foundations for oily skin. Not just that, these foundations are also great for daily usage and summer friendly. So today's video is going to be really exciting and helpful, so watch this video till the end. And without wasting much time in the intro, let's get into the video. Well, let's start with the affordable one. So here I have the Insight Cosmetics HD foundation. Yes, you are getting a HD product under ₹300, which is a steal deal. Also, the quality of this product is amazing. Recently I have done a detailed review of the this foundation and their concealer. So if you haven't watched that video yet, just check that out after watching this one. Obviously they have a wide shade range to choose from. Consistencies की बहुत liquidity है, so I would suggest go with a beauty blender to blend out this foundation. Flawless finish provide करती है, decently long lasting है and also बहुत ही लाइट वेट है. तो डेली वेयर के लिए हम लोग ऐसी फाउंडेशन से प्रेफर करते हैं जो कि लाइट वेट हो एंड बिल्कुल भी हेवी ना दिखे. तो अगर मेकअप करते हो, फाउंडेशन अप्लाई करते हो, देन वो विजिबल होगी. ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि आपने फाउंडेशन अप्लाई की है. ऐसा नहीं होता है. फाउंडेशन अगर अप्लाई करोगे तो फिर वो विजिबल होगी. सेकेंड फाउंडेशन दैट आई विल बी रिकमेंडिंग इज दिस Lakme 95 Primer Plus Matte Perfect Cover Foundation in the shade 320 Warm Caramel. Now W stands for warm category. Now I have seen a lot of people saying that Lakme 95 foundation is kind of similar with the Maybelline Fit Me one, but I will not agree. बिकॉज मेबलिन फिट मी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होती है मेरी स्किन पे, बट ये फाउंडेशन बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होती है. थ्रू आउट द डे आई कैन वेयर इट, लाइक इंटैक्ट रहती है. द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस फाउंडेशन इज कि ये हेविली सेंटेड है. बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्मेल आती है इसमें से. ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. अदरवाइज बाकी सब कुछ इसकी मुझे पसंद है. कवरेज इसकी बिल्डेबल है, बहुत ही स्मूथ फिनिश प्रोवाइड करती है एंड लाइट वेट है. मैट फिनिश प्रोवाइड करती है. ऑल्सो इट हैज प्राइमर इन इट, सो इट विल नॉट एग्जैजुरेट योर पोर्स. स्पैचुला एप्लीकेटर है, बट द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस फाउंडेशन इज रियली ड्रिपी, सो यू कैन एंडेड अप हैविंग फाउंडेशन ऑन ऑल ओवर योर क्लोथ्स. सो आई वुड सजेस्ट कि आप पैलेट में या तो कहीं पर भी थोड़ा सा फाउंडेशन पहले ले लो एंड देन अप्लाई इट. इससे एप्लीकेशन ईजी हो जाएगी एंड यू विल नॉट मिस अप. Then I have this Elle Flawless Finish Foundation and the shade that I use is Linen, which is for medium skin tone with golden undertone. Previously this one used to retails for ₹800, but now they have decreased the price, which is really impressive. First thing that you have to do before applying this foundation is that you have to shake the bottle properly. अच्छा, मैं पहले बता देती हूँ कि ये फाउंडेशन ना ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, बट इन केस यू हैव ऑयली स्किन आप इसको तब भी यूज कर सकते हो. बट मेक श्योर आपने आपकी फाउंडेशन को प्रॉपरली सेट की है, अदरवाइज ये ट्रांसफर होगी. कवरेज इसके लो टू मीडियम है एंड बहुत ही नेचुरल फिनिश प्रोवाइड करती है. बिल्कुल भी केकी नहीं दिखती है फाउंडेशन, बट ये ना थोड़ी सी ऑक्सीडाइज होती है. मुझे ये फाउंडेशन ब्लेंड करने में ना बहुत ज़्यादा मजा आता है, लाइक बहुत सेटिस्फाइंग है बिकॉज ईजिली ब्लेंड हो जाती है. फोर्थ एंड करेंटली माई मोस्ट फेवरेट एवरीडे वेयर फाउंडेशन हैज़ टू बी दिस Mamaearth Glow Serum Foundation in the shade 07 Toffee Glow. Like, this foundation is by far my favorite among all the foundations. Okay, I'm that confident while talking about this one. I have done a detailed review video on this product, so if you haven't watched that video yet, I will link it on the iCard, so please check that video out. This foundation is so good. It will feel like a second skin. बहुत ही लाइट वेट है, सीमलेस फिनिश प्रोवाइड करती है, बिल्कुल भी केकी फाउंडेशन नहीं दिखती है. इट स्टेज फॉर 8 to 9 hours and the best part about this foundation is that it provides a healthy glow. तो ज़्यादातर क्या होती है कि फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद स्किन की जो नेचुरल ग्लो है ना वो रिमूव हो जाती है, बट विद दिस फाउंडेशन इट विल गिव योर स्किन दैट एडेड ग्लो. ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी दिखती है स्किन. जनरली मैं कोई भी फाउंडेशन के लिए ये दो चीज़ें नहीं बोलती हूँ. फर्स्ट कि इट विल गिव यू स्किन लाइक फिनिश एंड सेकेंडली लाइक कोई भी इजिली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि आपने फाउंडेशन अप्लाई की है. बट विद दिस फाउंडेशन मैं ये 100% गारंटी लेके बोल सकती हूँ कि इसको अगर अप्लाई करते हो ना, देन कोई भी इजिली नहीं बता पाएगा कि आपने फाउंडेशन अप्लाई की है. बहुत ही हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करते हैं एंड यू गाइज नो दैट आई लव ग्लोई स्किन एंड ग्लोई फाउंडेशंस एंड दैट्स द रीज़न कि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. इसके अलावा और भी रीजन्स है, मैंने तो वो आप लोगों को बताई हैं. एंड अगर वो मेरी डिटेल वीडियो चेक करोगे ना तो फिर आप लोगों को इसके बारे में और भी सब कुछ पता चल जाएगा.
You guys know that I don't prefer using foundations on a daily basis. I always prefer BB creams, but ये एक ऐसे फाउंडेशन है जो कि मैं हर रोज़ यूज़ कर सकती हूँ. एक तो लाइक सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसमें, एंड सेकेंडली मैंने आप लोगों को बोला कि बहुत ही सीमलेस स्किन लाइक फिनिश प्रोवाइड करती है. इनफैक्ट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ तो मैं इसको मेरी फिंगर टिप से ब्लेंड कर लेती हूँ एंड ईजिली ब्लेंड हो जाती है. ब्रश मैं उतनी ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगी इसको ब्लेंड करने के लिए, बिकॉज कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ही लिक्विडी है, तो स्ट्रोबिंग लाइन्स क्रिएट हो सकती है विद ब्रश. लास्ट फाउंडेशन दैट आई हैव इज दिस शुगर रेस फॉर कवरेज 24-hour फाउंडेशन इन द शेड 42 Glaze. This foundation is a full coverage foundation also. It will give you that powdery matte finish and it's very long lasting. It's waterproof, it's transfer proof, it's like very full coverage. It will control your oil but it will not clog your pores. It has very thick texture. If you have very oily skin, then trust me, this is something that you need in your life. So yep, these are the few foundations that I will recommend you guys to try out. In case you have any other suggestions, then please leave them down below. All the purchase links will be mentioned in my description box, so please check out from there, and see you guys soon. Bye and take care.